The student who appeared in AEO today, he has asked the questions the same way that in the beginning, in the start, the examiner asked him to introduce himself. So he told there about his name, the place he lives, the hometown about, and his profession too. The examiner asked him, "Do you work right or a student?" So जब ये क्वेश्चन आता है कि do you work right or a student, तो obviously if you are doing studies, you will be telling that I am a student. And if somebody is, if the examiner asks you that do you work, so जब work की बात आ जाए तो obviously you have to tell about the job and the job place about. And these questions are very common, and every next student is asked for these questions. So then he was from not Lahore. If the person is not from a big place, if the person is from a small place, from a small town, as he was from Khanewal, so he was asked about the speciality of the place. He told about each and everything which is available there, and then I made him prepare before he appeared in the test, like what are the sources of entertainment for the people living there, how people get their jobs, what do they do in their free times and spare times. So he was asked similar questions. Later, the examiner asked him uh, the questions about his likes and dislikes, his personal likes and dislikes. So he about food, about fruits, uh, the favorite weather conditions. He was prepared for all these questions. I asked him many times in my class to make him prepare for the IELTS speaking test. एंड लकीली जो मेरा एक गेस्ट था कि उससे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है अबाउट क्यू कार्ड में द बेस्ट फैमिली, टॉक अबाउट द बेस्ट फैमिली यू नो. सो ये क्वेश्चन भी उसको प्रिपेयर करवाया गया था. Another student is joining me. Yes, Sajid is here. So please wait. So hello Sajid, how are you? Uh, Sir, I'm fine. What about you? I'm good too. I'm good too. Today I was telling Amrina about that one of my student, he appeared in the IELTS speaking test today in AEO, and he was asked the similar question which I have asked you people many times in my class. And the student who appeared today in the AEO examination, he was asked the similar questions. So the Uh, Q so, card, जो Q card उससे पूछा गया, mhm. although कि he was academic candidate जो कि IELTS ले रहा था, Okay. लेकिन ये जो स्टूडेंट्स जो जनरल ट्रेनिंग के होते हैं उनसे ये क्वेश्चन ज़्यादा किया जाता है कि टॉक अबाउट द बेस्ट फैमिली यू नो. So he was prepared, he was made prepared in the class to talk about any of the family. So he was prepared to talk on his uncle's family. So the same way he told or explained everything uh, in 2 minutes. Almost he was speaking for 2 minutes. 2 minutes तक वो बोलता रहा और he was prepared for the test. Luckily वो topic उसका prepared था. जैसा हमने explore करने का topics को एक method जो है वो पहले devise किया हुआ है. तो वही topic उसको Mm. वही explore करने का जो है उसको याद था और उसने उसी तरीके से उस टॉपिक को प्रिपेयर किया हुआ था. तो ही वेंट थ्रू, उसने टेस्ट को बड़ा अच्छा तरीके से किया. उसके बाद जो और एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी उसी से रिलेटेड थे, प्लस न्यूज़पेपर से रिलेटेड पूछे गए और मीडिया न्यूज़ जो कि चैनल्स के थ्रू जो होते हैं, चैनल न्यूज़ जो आ रहे हैं आजकल टीवी पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो अपनी न्यूज़ की ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं. तो उससे वो डिफरेंस पूछा गया कि Mhm. how newspapers are different from watching the news channels. The news which we see on TV, that they are more helping, or people should read the newspaper. Why people should not be reading
TV and why they should not go reading newspaper. So उसका comparison उससे उसके ऊपर discussion की गई. और finally फिर he was gone through the speaking test for like 14 and 16 minutes. And the examiner said him, okay, fine, you done good, gentlemen, thank you very much. और इस तरीके से कह के वो इंटरव्यू उसका कंप्लीट हो गया. इंटरव्यू के अंदर जो चंद एक बातें होती हैं वो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. मिसाल के तौर पे एक हमारी होती है वर्बल कम्युनिकेशन. हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं जिसमें कि हमारी अंग्रेजी होती है, हमारे कंटेंट्स होते हैं. इसके अलावा से जो दूसरा पार्ट है जो कि 40% हमारी कम्युनिकेशन के अंदर आता है वो हम लोगों के जो है वो बॉडी लैंग्वेज होती है. बॉडी लैंग्वेज के अंदर हमारे जेस्चर्स होते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं. प्लीज एंड थैंक यू, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो कि हमें फॉर्मल करते हैं. तो हमारी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके अंदर इस तरह के उसने वर्ड्स यूज किए थे और उसको प्रिपेयर किया गया था कि जब वो एग्जामिनेशन रूम के अंदर जाए तो एग्जामिनर के लिए वेट करे कि वो उसको कहे कि जेंटलमैन प्लीज टेक योर सीट. जब आपको ये कहा जाता है कि जेंटलमैन प्लीज टेक योर सीट तो तब आप बैठिए. अगर आपको पहले ही उसने कह दिया, उसने नहीं कहा है, तो यू शुड नॉट बी सिटिंग योरसेल्फ. यू हैव टू वेट विद द सीट and you will be taking 2-3 मिनट का पॉज लें और उस वक्त तक ना बैठें जब तक आपको कहा ना जाए. अगर नहीं कहा जा रहा तो ऑब्वियसली आप फिर पूछेंगे. आप यू आर नॉट अनकंसर्न तो नहीं है कि जो उस कमरे के अंदर आ गए हैं एग्जामिनेशन के, एग्जामिनर के कमरे के अंदर अगर आप आ गए हैं तो ऑब्वियसली आपने वहाँ बैठना है, तो बात करनी है, तभी तो इंटरव्यू होना है. तो तब फिर एग्जाम स्टूडेंट को चाहिए या कैंडिडेट को चाहिए तो कहे कि कैन आई मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल. तो जब उसको ये कहा गया कि ओके टेक योर सीट तो उसने बैठ गया. अदरवाइज ना पूछा जाता तो मैंने कहा था कि यू शुड बी आस्किंग द एग्जामिनर दैट मैम प्लीज कैन आई मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल. तो उसने एग्जामिनर ने उसको बैठने के लिए कह दिया. ही सैड एंड ही सेड थैंक यू. जब आपको कहा जाए कि आप तशरीफ रखिए तो ऑब्वियसली यू विल बी सेइंग थैंक टू द एग्जामिनर. और फिर उसको उसी तरीके से बताया गया जेंटलमैन योर इंटरव्यू इज गेटिंग रिकॉर्डेड, यू मस्ट बी स्पीकिंग लाउडर. तो ये जो थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हैं ये इसमें आपका जो प्लीज, थैंक यू और इस तरह के जो ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं ये आपकी स्पीकिंग का तकरीबन 40% होता है. सो ये आपकी दरअसल एग्जामिनर के साथ एक टोन को जो है वो सेट करता है. एग्जामिनर आपको फेवर भी दे सकता है इस सेंस में कि अगर आप बड़े फॉर्मल हैं, बड़े पोलाइट हैं, बड़े प्रेजेंटेबल हैं और आप इफ यू आर नॉट इल मैनर्ड तो ऑब्वियसली एग्जामिनर इज गिविंग यू अ काइंड ऑफ अ favor in the examination and examiner will ask you easier questions. You will not have to face difficult questions in the eyes. Difficult questions इस तरह के हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे एक मेरी स्टूडेंट जो है वो आइट्स के एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हुई एंड शी वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड शी in her introduction she talked about like I am blah blah blah, I took my graduation from UK and that and then. एग्जामिनर ने अगला ही सवाल उससे जो पूछा वो उसने यही पूछा कि would you like to tell me about some cash crops in the country. अब ये सवाल जो कि था वो उसके बिल्कुल ही समझने के उसके सब्जेक्ट में नहीं था, उसकी डोमेन्स में नहीं था, उसके बारे में उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और वो अपनी अंग्रेजी को तो इस्तेमाल कर सकती थी लेकिन उसके पास सब्सटेंस नहीं था. तो लिहाजा अगर आप अपनी फेवर चाहते हैं एग्जामिनेशन में स्पेशली स्पीकिंग के अंदर जिससे कि क्वेश्चन दूसरी साइड से आने हैं तो उसमें आपको ये चाहिए कि आप शुरू में एक बड़ा क्या लें कि डाउन टू अर्थ तो नहीं लेकिन ये कि बड़ा एक रीजनेबल सा अपना इंट्रोडक्शन पेश कीजिए. डू नॉट टेल द एग्जामिनर व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग. इफ यू आर डूइंग वेरी हाई फाई जॉब, अगर आप बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन पे हैं तो तब भी आप उसको मत बताइए. सिंपली आप ये कह दीजिए कि आई वर्क इन अ कॉमर्स हाउस, आई वर्क इन अ cricket team, I work I'm a player, I'm an athlete.
या अगर आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी रैंक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये कह दीजिए फॉर एग्जांपल इफ आई हम्म, हैव टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, इफ आई एम अ बॉस ऑफ अ कंपनी, तो देन सिंपली don't make things very glorified over there. Simply, it is a test of your English. You will be making like this: I am Sohail. I live in Lahore. It's my hometown, and I am working in a small business company. Right? No need to tell. I guess yes. Yes, Try to yes. be miserable type of person. Not misery in a sense. Misery वो जरा थोड़ा सा negative impact हो जाता है. We are not supposed to ये be. देखिए sir, we can say sir, I am married. Please. Yes, it's a controversial statement. अगर ये कह दिया जाए, बहरहाल ये होता है. It's a part that we are the married people and we are the most miserable creatures. So don't worry. तो हाँ, एक चीज ये, हाँ आपने बड़ी अच्छी बात की, तो ये कि having a good sense of humor is very good. It is helping you. It is helping you in the examinations. You must not be boring. You must not sound boring. आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा बोर नहीं फील करना चाहिए. ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो जरा लाइव हार्टेड हो. So the live Yes. hearted people, they have their place all around. So they get some मुझे तो अपने इंटरव्यूज में भी यही करते हैं. exactly interviews के लिए ही, interviews के अंदर बात कर रहा हूँ. But you should Sir, I not be. guess it is very important in order to control your anxiety. Otherwise, हाँ पैनिक नहीं pressure होता. बहुत built हो yes sir, pressure बहुत built up हो जाता है अगर आप इस तरह कहीं जाते एग्जामिनेशन हैं. इज अ डिफरेंट बॉल गेम. आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी हैं, जब आपको ये पता है कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट जो है वो रैंक किया जाएगा, स्पोर्ट्स किया जाएगा, आपके आगे आपके लाइफ के मिशंस हैं, उस मिशंस को अचीव करने के लिए चाहे वो स्टडी है या इमिग्रेशन है या कहीं पे आपने दूसरे कंट्री के लिए जाना है, तभी तो आइट्स करने की जरूरत आपको पेश आ रही है. तो जब आपको इन चीज़ों की सभी चीज़ों के अंदर आपको जो है वो आपके पीछे एक वो पूरा गोल है, तो वो उसी गोल्स की प्रेशर्स के साथ आप एग्जामिनेशन के अंदर पैनिक हो सकते हैं. तो स्टे काम. जब हम पैनिक होंगे, जब हम स्ट्रेस में आएंगे, तो जो हम कर सकते हैं, जो हम जिंदगी में जिस कैपेसिटी को होल्ड करते हैं और जो हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जब हम पैनिक होंगे तो हम उन चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, अपना 100% नहीं दे सकेंगे. तो लिहाजा ऑब्वियसली ये चीज़ें दे आर ऑल ऑन आर नर्व्स, हमारे ऊपर होती हैं, लेकिन इससे निकलने के लिए क्या तरीक़ेकार है? निकलने के लिए वही तरीक़ेकार है जिस तरीके से मैंने बताया कि you should be recording yourself. I used to talk to you and I asked you many questions to prepare you for the IELTS examination. You answer me and you insist that I must be asking you questions online. Online में आपसे क्वेश्चन करता रहूँ, इंटरव्यू करता रहूँ. ठीक है, फाइन, इट विल हेल्प यू. लेकिन आपकी अपनी पर्सनल स्किल्स कैसे डेवलप होंगी? आपकी अपनी पर्सनल स्किल्स उस तरीके से डेवलप होंगी. दरअसल इंसान जो होता है वो बाहर वाली चीज़ों के बजाय अपने आप से ही हमेशा डर रहा होता है. ये जो अपना फोबिया होता है अंग्रेजी को बोलने के लिए या दूसरी ज़बान को बोलने में और उसमें टेस्ट होने के लिए, इसमें हम अपने वो कह लें कि शेल के अंदर, अपने खौल के अंदर दबे हुए होते हैं. अपने खौल से बाहर निकलने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि यू गो इन योर आइसोलेशन. आप अपने कमरे के अंदर जाइए, कमरा अंदर से बंद कर लीजिए, सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 4 लाइनें लीजिए और उसको लाउड बोलिए. इन द बिगनिंग यू फील दैट व्हाट स्टूपिड थिंग आई एम गोइंग टू डू. आप कहेंगे ये क्या फजूल चीज मैं कर रहा हूँ जिसका कि मुझे कोई फायदा नहीं होना है. दरअसल इंसान अपने आप से घबरा रहा होता है. आपसे पहली दफा नहीं बोला जाएगा कमरे में अकेले बैठ के, आप हंसेंगे, आप कहेंगे छोड़ो, दफा करो, इसको नहीं करता हूं मैं, लीव इट, आप इसको छोड़ दिया जाता है. लेकिन अगर आप पहली दफा उसको करेंगे तो यू यू व्हेन यू विल लिसन बैक टू योरसेल्फ आफ्टर रिकॉर्डिंग योरसेल्फ, तो आपको अपनी मिस्टेक्स का खुद पता चलेगा. जब आप खुद बोल रहे होते हैं और उस वक्त आपको अपनी मिस्टेक्स का नहीं पता लग रहा होता. जब अपने आप को दोबारा रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो उस वक्त आपको अपनी मिस्टेक्स का पता लग रहा होता है. तो आप फिर उन फ्लॉज को, उन लूप होल्स को, उन वीकनेसेस को जो है नेक्स्ट टाइम
ना करने के लिए दोबारा से एफर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट डे जब आप फिर अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे किसी एक टॉपिक के लिए, वही एक्सप्लोरेशन करने के लिए जो 4 तरीकेकार का 4 क्वेश्चंस के ऊपर आपने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है और उसके ऊपर बोलना होता है, तो वो जो प्रैक्टिसेस एडवाइस की जाती हैं। So when you prepare more than like 10-15 topics that way, so it's gonna help you a lot, or after 2-3 weeks time you feel a remarkable difference in yourself. अपने आप के अंदर आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा. So try it out. Okay.